کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں بات کرتے ہیں آگے۔ آج مائی کوشچن کی جو پلے لسٹ بنی ہوئی ہے اس کی ایک اگلی نئی ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، اور یقین جانیے آج بہت ہی ٹاپ کے کوشچن ہونے والے ہیں جو یو پی ٹی جی ٹی کے ایگزام یا اس کے علاوہ بھی اور جو ایگزام ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ہوں گے، مکس کر کے لایا ہوں۔ پہلا سوال دیکھیے، سر سید کے رفقا میں واضح اصطلاحات اور لفظ سازی کے اصول و قواعد پر کس صاحب قلم بند کو زیادہ شہرت ملی ہوئی ہے؟ یعنی وہ کون سے ان کے رفقا ہیں جنہوں نے لفظ سازی کے اصول و قواعد پر سب سے زیادہ تصانیفیں لکھی ہیں، شہرت ملی ہوئی ہے، قلم بند سب سے زیادہ شہرت ملی ہے؟ تو اس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، وحید الدین سلیم کا نام یاد رکھنا ہے۔ بہت ہی اہم ان کے رفقا میں گنے جاتے ہیں سر سید کے۔ اگلا سوال دیکھیے، تاریخ تمدن ہند، یہ کتاب یاد رکھیے گا، تاریخ تمدن ہند کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو یہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے، محمد مجیب۔ ڈھیر کوشچن ہیں، تھوڑا سا جلدی بات کروں گا، تو آپ کو کیا کرنا ہے، ان کو جو کوشچن اس میں سے نہیں آتے ہیں ان کو نوٹ کرتے رہنا ہے، اور اس کی پی ڈی ایف لینے کے لیے وہ تو میرے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں مل جائے گی۔ محاورات ہند کس کی تصنیف ہے؟ یہ تصنیف آپ کو یاد رکھنا ہے، محاورات ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ تصنیف ہے لکھی ہوئی مولوی سبحان بخش، ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، مولوی جو سبحان بخش ہیں ان کی کتاب کا نام ہے لکھی ہوئی، یہ دیکھ لیجئے محاورات ہند۔ آگے ہے رسالہ فوائد النظیر اور اس کے علاوہ حب ہند، تو یہ دو تصنیفیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ کس کی کتابیں ہیں؟ تو آپ کو یہ اچھے سے یاد رہے، رام چندر کی۔ رام چندر کا تعلق جو ہے وہ دہلی کالج سے تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا ساتھ ہی ساتھ میں۔ سوال ہے، مارکسی تنقید کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم ہے، یاد رکھیے گا۔ مارکسی کا دوسرا نام جو ہے وہ ترقی پسند تحریک ہے، یا پھر اشتراکیت کو بھی، یہ نظریہ جو ہے وہ ترقی پسند کا ہی نظریہ ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، نرس کی چارہ گری، یہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں جس کو ریویژن کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت آسانی رہتی ہے اور امپورٹنٹ کوشچن ہوتے ہیں۔ تو نرس کی چارہ گری نظم یاد رکھیے گا، مجاز لکھنوی کی لکھی ہوئی ہے۔ مجاز لکھنوی کے باقی جو باتیں ہیں ان پہ میں بات کرتا رہتا ہوں، تھوڑا سا آج میں کوشچن کو کرانے کی کوشش کر رہا ہوں ادروائز نالج کے علاوہ۔ رانی کیتکی کی کہانی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا آسان ہے، کئی بار اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے امتیاز علی عرشی کا نام یاد رکھیے گا۔ بہرحال لیکن جو نئے بچے ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، باقی سبھی کو یہ معلوم ہے۔ اب یہ سوال دیکھیے ہے، حالی کی خود نوشت جو ہے اس کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، تو یاد رکھیے گا یہاں پہ ترجمہ حالی، تو ان کی یہ خود نوشت ہے، 1901 میں آئی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد میں یہ ہے جو ہے پولیٹکس کے نام سے جو کتاب ہے، یعنی فن شاعری اس کو اردو میں کہتے ہیں، فن شاعری کے نام سے 3 انگریزی کے جو ادیب ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، جس طرح سے پولیٹکس کا ترجمہ، بوتیکا کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا ہے، ارسطو کی بوتیکا کا ترجمہ، اسی طرح سے ارسطو کی پولیٹکس بھی ہے جس کو فن شاعری بھی کہتے ہیں، وہ فن شاعری کے نام سے یا پولیٹکس کے نام سے 3 لوگوں کی کتاب ہے، ارسطو کی ہے، اس کے بعد میں فورس کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا بوبلو جو ہے اس کی بھی کتاب کا نام یہی ہے، فن شاعری۔ تو ان تینوں کا نام ارسطو، فورس، اس کے بعد میں ہے بوبلو جو ہے اس کا بھی نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، روپ بنگال 1934، یہ شعری مجموعہ ہے، کس کا ہے؟ تو مسعود حسین خان کا، اور اس کے بعد میں 2 نیم 1956 میں آیا، یہ بھی شعری مجموعہ کس کا ہے؟ مسعود حسین خان کا۔ دراصل مجھے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ، اور کہا یوں جاتا ہے کہ یہ روپ بنگال جو ہے وہ ایک ہی شعری مجموعہ ہے، اس کا بعد میں دوسرا نام 2 نیم کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے 1956 میں۔ بہرحال یاد رکھیے گا، کوئی بھی نام آئے، روپ بنگال یا 2 نیم، شعری مجموعہ کے طور پہ یاد رکھنا ہے، آپ کو مسعود حسین خان کا نام یاد رکھنا پڑے گا۔ اگلا سوال یہ ہے، یہ لفظ یاد رکھنا ہے،
लफ्ज़ है ये देखिए, जुमला पूरा आपको याद रखना है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। लफ्ज़ ना गुंजलक ना ताक़ीद ना हो, ये लफ्ज़ किसने कहा है? ये लफ्ज़ ये कौल किसका है? लफ्ज़ ना गुंजलक ना ताक़ीद ना हो, तो ये जो लफ्ज़ हैं ये हैं बबर अली अनीस का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख़, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख़ आपको याद रखना है, किसकी लिखी हुई है? तो ये आपको नाम याद रखना है असगर गोंडवी। असगर गोंडवी की नाम आपको याद रखना है। तो या असगर गोंडवी की दूसरी भी किताब याद रखना है, यादगार नसीम। ये तनकीदी किताबें हैं दोनों असगर की, तो याद रखना। यादगार नसीम को भी आपको याद रखना, साथ साथ में उर्दू शायरी की ज़हनी तारीख़ ये भी याद रखना, असगर गोंडवी। अब एक नया और सवाल देखिए, सवाल ये है, नरंगे इश्क या नरंगे ख़याल तो आपको जानते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़ामीन का मजमुआ है, 13 उसमें मज़ामीन हैं, इंशाएँ हैं। तो नरंगे इश्क अगर पूछा जाए ताल्लुक़ किसका है, किससे है? तो नरंगे इश्क एक मसनवी है, ये याद रखिएगा, और ये पूछा जा चुका है, ये भी याद रखिएगा साथ साथ में। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी जो है, तो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का नाम आपको याद रखना है। फ़याकस बतरूस जो प्रिंसिपल था दिल्ली कॉलेज का, दूसरा प्रिंसिपल था विलियम हंटर टेलर के बाद में बनने वाला। उसके बाद में 1941 कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं 1943 में इसकी बुनियाद रखी थी और उसने तर्जुमा करने के लिए। अब यहाँ से कुछ अफसानवी मजमूए हैं, वो अफसानवी मजमूए जिनसे सवाल बनते हैं उन पर बात करते हैं, ख़ास जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। याद रखिए, ठंडा गोश्त अफसानवी मजमूआ मंटू का है। पूछा जाए अगर इसमें कितने अफसाने हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें 8 अफसाने हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा 1950 में ये अफसानवी मजमूआ आया है। तो आज जिन क्वेश्चनों पे बात कर रहे हैं, आप भी कहते हैं कि कम क्वेश्चन हैं, आज देख लीजिए क्वेश्चन। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएँ। बाबा लोग, ये अफसानवी मजमूआ है, यहाँ से क्लियर हो गया। किसका है पूछा जाए, गयास अहमद गद्दी का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाबा लोग किसका अफसानवी मजमूआ है, गयास अहमद गद्दी का। अगला है सवाल, याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का नाम। बेदी के बारे में तमाम डिटेल बात कर चुके हैं। अपने दुख मुझे दे दो इनका अफसानवी मजमूआ है। कुल मिलाकर के इसमें 9 अफसाने शामिल हैं और 9 अफसाने शामिल, इसी के साथ ये भी याद रखिए जो ऊपर बात की है गयास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमूआ, गयास अहमद गद्दी वाले बाबा लोग में भी 9 अफसाने हैं और साथ ही साथ राजेंद्र सिंह बेदी का जो अपने दुख मुझे दे दो है, इसमें भी 9 अफसाने हैं, ये भी याद रखिए। और 1965 में अपने दुख मुझे दे दो शेरी वो अफसानवी मजमूआ आया था। अगला सवाल देखो, सवाल है कि हम वहशी हैं, मजमूआ है हम वहशी हैं। तो ये लिखा हुआ है कृष्ण चंद्र का, एक बात। दूसरी बात 1948 में आया। तीसरी बात इसमें 10 अफसाने हैं। 3 बातें याद रहे, हम वहशी हैं कृष्ण चंद्र का है, 1948 में आया, 10 अफसाने हैं, याद रखिएगा। अब 10 ही अफसाने एक लड़की अफसानवी मजमूआ है, किसका है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास का, 1942 में यह आया है, इसमें भी 10 अफसाने शामिल हैं। अब याद रखना कि ख्वाजा अहमद अब्बास का पहले अफसानवी मजमूआ आया है एक लड़की, और कृष्ण चंद्र का जो अफसानवी मजमूआ है वो बाद में आया, और दोनों में 10-10 अफसाने शामिल हैं। अब एक सवाल और, सवाल है कि चोटें कितनी लगी थी इसमें चुगताई को? याद रखिए 11 अफसानवी मजमूए थे चोटे में। चोटे अफसानवी मजमूआ है, कितने अफसाने हैं? 11। किस सन में आया है? 1942 में, ये याद रखिएगा। 11 ही हिस्सों पर मैंने बात की थी। एक चादर मैली सी जो है उसके एक चादर मैली सी में भी 11 बाब हैं, और 11 ही आपको याद रखना है कि यह अफसानवी मजमूआ, यहाँ से इसको भी याद रखना। और 11 ही हिस्सों पे खुदा की बस्ती भी है, ये भी याद रखिए, वो भी नावल है खुदा की बस्ती। तो इसके बाद में अगला है सवाल, इकबाल मजीद का अफसानवी मजमूआ कौन सा है? तमाशा घर, बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल कितने अफसानों पर मुश्तमिल है? तो इसमें 12 अफसाने हैं। तो 12 अफसाने, ये 2003 में आया था। इकबाल मजीद का तमाशा घर, कितने अफसाने? 12 अफसाने, 2003 में ये शाया हुआ था। वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ है, तो याद रखने वाला है जो अफसानवी मजमूआ है प्रेमचंद का, वो है वारदात
वारदात रिसाला अगर पूछा जाए तो ख्वाजा में दर्द का है, ये याद रखना। तो वारदात ये अफसानवी मजमुआ में कितने अफसाने शामिल हैं? 13। प्रेमचंद ये 1938 में आया। अभी तक जितने अफसानवी मजमुए बात करें इनमें सबसे पहले यही आया है, लेकिन अफसानवी तरतीब के हिसाब से लगाने की वजह से इसको सन इसका आगे पीछे हो रहा है। तो तरतीब से चल रहा हूँ। तो 11 किस्में थे, वो अभी मैंने उसमें बात की है, इसमें चुगताई वाले में, छोटे में 12 किस्में अफसानवी मजमुए हैं, अफसाने हैं तो तमाशागर इकबाल मजीद। अब 13 किस्में हैं तो वारदात में मुंशी प्रेमचंद। अब इसके बाद में है रास्ता बंद। रास्ता बंद के बारे में देखिए, जीलानी वानों का अफसानवी मजमुआ है। तो इसमें कुल कितने अफसाने हैं? तो इसमें अफसाने हैं 15, इसमें 6 अफसानचे भी हैं। याद रखिए कुल मिलाकर के ये 2010 में आया है शेरी मजमुआ, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अब सवाल है सोहेल अजीमाबादी। भाई सोहेल अजीमाबादी का नाम याद रखिए। अलाउ इनका अफसानवी मजमुआ है, इम्पोर्टेंट है। 16 अफसाने हैं। सा से सोहेल, सीन से सोहेल और सीन से 16, तो 16 अफसाने हैं शामिल किसमें? अलाउ में। और 1940 में ये अफसानवी मजमुआ आया था। अब बात करेंगे कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो वो है रोशनी की रफ्तार। रोशनी की रफ्तार है, कब आया है? तो यहाँ से आपको याद रखना है 1982 में आया। कुल मिलाकर के इसमें 18 अफसाने शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। सितारों से आगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। सितारों से आगे अच्छा किसका है? तो सितारों से आगे बात आपको मालूम है, ये अफसानवी मजमुआ है कुर्रतुल ऐन हैदर का। और कुर्रतुल ऐन हैदर जो हैं उनके अफसानवी मजमुए में बहुत ही अहम ये दोनों अफसाने मजमुए थे जो मैंने बात की है। अब ये एक और याद रखिएगा अफसानवी मजमुआ है कीमिया घर। कीमिया घर होना चाहिए, कीमिया घर नहीं, कीमिया घर, गा और रा होना चाहिए घर। तो कीमिया घर याद रखिएगा। कीमिया घर में क्या है? ये 1984 में अफसानवी मजमुआ आया, शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ है। खुदा की बस्ती नॉवेल भी इन्हीं साहब का है, याद रखिएगा। अब याद रखने वाली बात है फरेब, रात, नशेब, 7 रंग। ये 4 अफसानवी मजमुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। फरेब, रात, नशेब, 7 रंग, चारों अफसानवी मजमुए किसके हैं? तो अब्दुल्ला हुसैन, ये भी याद रखिएगा। आगे है गली कूचे। 1952 में आया है अफसानवी मजमुआ, किसका है? तो इंतज़ार हुसैन का है, ये आपको याद रखना है गली कूचे। ठीक है। अगला देखिए उर्दू का पहला, थोड़ा सा मैं बगैर साँक लिए जल्दी जल्दी बताता हूँ। आपको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा मैं जल्दी बताता चलता हूँ, ये दिमाग जो है रिसीव कर पाने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पा रहा, तो आप स्पीड स्लो कर लीजिए, क्योंकि एक ही बार में याद होता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आप वीडियो को बार बार देखिए, खूब देखिए। और बात एक याद रखने वाली ये है कि आप जो पुरानी वीडियो देखते रहते हैं उनको हफ्ते में या मतलब 5-6 दिन के बाद फिर, जैसे आज एक वीडियो आपने देखी 10-15 मिनट की, तो इससे पुरानी एक 2 वीडियो देखिए एक दिन में। आज 10-15-20 मिनट की जो वीडियो देखी और पुरानी एक वीडियो 10-15 मिनट की देखी, तो इस तरह से रिवीजन भी आपका पीछे से होता रहे, ये बहुत जहन में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ देखने से याद नहीं होगा, ये बात जहन में रखिएगा। आपसे सवाल अगर पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला तारीख़ी नावल कौन सा है? उर्दू का पहला नावल तो आपको पता है मरातुल उरूस है, डिप्टी नज़ीर अहमद का 1869 में आया। अगर उर्दू का पहला तारीख़ी नावल पूछा जाए जिसमें तारीख़ बयान की गई है, तो वो याद रहे जो है मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना का नाम आपको याद रखना है। 1888 में यह नावल लिखा गया है और यही वो डेट है जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे। अगला सवाल है इंतज़ार हुसैन और शौकत सिद्दीकी, इन दोनों की पैदाइश आपको याद रखना है, वो 1923 में हुई है। 1923 में शौकत सिद्दीकी और इंतज़ार हुसैन पैदा हुए। इसके बाद हबीब तनवीर भी 1923 में पैदा हुए, ये भी बात याद रख लीजिएगा। अब कुछ अलग तरह के और सवाल देखिए। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, न टूटी शेख से जुन्नारे तस्बीह सुलेमानी। तो ये मतला है कसीदे का। आपसे सवाल ये है कि कसीदे का पूछा जाता है, किसका ये कसीदा है? तो ये सौदा का कसीदा है। कितने इसमें अशार हैं? तो 48 अशार हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसमें कितने मतले हैं कसीदे में, तो ये 2 मतले हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। कसीदा याद रहे, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, इसमें 48 अशार हैं। सौदा का कसीदा है, बट इसमें 2 मतले हैं।
अब इसके बाद में एक और देखिए, है चरख जब से अबलक़े अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते अना काबे एक करार। इस वाला जो ये वाला जो कसीदा है, इस वाले शेर में, ये काहे का शेर है तो कसीदे का है। किसका लिखा हुआ है तो सौदा का ही है। इसमें 81 अशार हैं, उसमें 48 थे, इसमें 81 अशार हैं, लेकिन उसमें मतले 2 थे, इसमें सिर्फ एक ही मतला है। ये याद रखिए, अशार ज़्यादा हैं लेकिन मतला एक है, उसमें अशार कम हैं लेकिन मतले 2 हैं। याद रखिए, ज़हे निशात अगर उसे कीजिए तहरीर, ये याद रखिएगा। ये कसीदा भी आप किसका है, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर। तो यहाँ से ये कसीदा किसका है, ये कसीदा है ज़ौक़ का। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नाम आपको याद रखना चाहिए। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का यह कसीदा है ज़हे निशात। इसमें 100 अशार हैं और इसमें 3 मतलों का इस्तेमाल किया है ज़ौक़ ने, ये याद रखने वाली बात है। अब एक और ज़ौक़ का कसीदा याद रखना है मेरे आबले दिल के तमाशा गौहर, एक गौहर टूटे तो हों कितने ही पैदा गौहर। तो गौहर वाला भी ये कसीदा किसका है, ज़ौक़ का ही है। इस कसीदे के अंदर कितने अशार हैं तो इसमें अशार जो हैं वो 72 अशार हैं और कितने मतले हैं तो 2 मतले हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 मतले हैं और इससे पहले वाला जो कसीदा अभी मैंने पढ़ा था उसमें 100 अशार हैं और उसमें 3 मतले हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें 100 अशार हैं उसमें मतले 3 हैं, जिसमें 72 अशार हैं उसमें अशार जब कम हैं तो मतले भी कम हैं, तो मतले उसमें 2 ही हैं। लेकिन सौदा के वहाँ उल्टा है, जिसमें अशार ज़्यादा हैं उसमें मतले कम हैं, मतला एक ही है, और जिसमें मतला अशार कम हैं 48 हैं उसमें मतले 2 दे दिए हैं। तो ये याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। अब एक बार और आगे देखिए। अच्छा, यहाँ से सवाल और भी देखिए। ये सवाल है कि सवाना निगारी के कितने लवाजिम हैं, यानी कितने लवाजिम होते हैं सवाना निगारी में और कौन कौन से हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सवाना निगारी में जो लवाजिम होते हैं उसके जुज़ टुकड़े होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, एक मौजू होता है, दूसरा मवाद होता है, तीसरा उसलूब होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब ये कॉल देखिए, किसका है कॉल, ख़ास शख्स की ज़िंदगी की तारीख़। कोई ख़ास शख्स जो होता है उसके ज़िंदगी की तारीख़ सवाना उम्री है। तो सवाना निगारी की ये डिफिनेशन किसने दी है, तो ड्राइडन का नाम आपको याद रखना है। ड्राइडन ने ये कहा है, क्या कहा है, ख़ास शख्स की ज़िंदगी की तारीख़ सवाना उम्री है। अच्छा, दूसरी चीज़ किताब याद रखने हैं आपको, शिबली नामा और गालिब नामा। ये दोनों किताबें किसकी हैं, शिबली नामा, गालिब नामा, ये दोनों किताबें हैं शेख मोहम्मद इकराम की। अब ये देखिए, आसारुल सनादीद आपको पता है किसकी है, सर सैयद की। आपसे पूछा जा सकता है कि आसार अबुल कलाम जो है वो किसकी किताब है, तो ये अबुल कलाम पे लिखी हुई काजी अब्दुल गफ़्फ़ार की है, ये याद रखिएगा यहाँ से। अब अगला सवाल है, हयात सुलेमानी किसकी तसनीफ़ है, तो हयात सुलेमानी भी आपको याद रखना है, ये किताब है मोइनुद्दीन नदवी की। तो हयात सुलेमानी जो किसकी है, मोइनुद्दीन नदवी की। शिबली ने किस किताब को किताबुल मनाक़िब कहा है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा। शिबली ने किस किताब को किताबुल मनाक़िब कहा है, तो हयात जावेद को कहा है। अच्छा, हयात जावेद जो है उसको मुदल्लल मद्दाही किताब भी कहा है। मुदल्लल मद्दाही किताब भी हयात जावेद को शिबली ने कहा है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, कौन सी किताब को तारीख़ निगार का शाहकार कहा जाता है, तो तारीख़ निगारी का शाहकार कहा जाता है, ये शिबली की ही किताब है, सवाना उमरी है, अल फ़ारूक़ किताब का नाम है, 2 जिल्दों पर यह किताब है। इस किताब को तारीख़ निगारी का शाहकार कहा जाता है। सवाल है, इंशाए सुरूर क्या है, इंशाए सुरूर, तो इंशाए अगर है तो इंशाए का मतलब इंशायात समझ लेना, ये ख़ुतूत का मजमुआ है इंशाए सुरूर, ये याद रखिएगा। इस तरह से अगला सवाल एक और है कि फ़ग़ा बेख़बर, ये शायर हैं, फ़ग़ा बेख़बर और इंशाए बेख़बर, सॉरी ये किताबें हैं दोनों, फ़ग़ा बेख़बर और इंशाए बेख़बर किताबें हैं। तो ये क्या हैं, तो गौस ग़ुलाम बेख़बर जो थे अदीब, उनकी
مکتوب کا مجموعہ ہے، یعنی ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، فغائیں بے خبر اور انشائے بے خبر۔ ذہن میں رکھیے گا، تصنیفوں کا صنفی حیثیت مت بھول جانا ان کی۔ انشائے لگا ہوا ہے تو انشائے میں ٹک کر دو۔ اردو کا پہلا دستیاب شدہ خط کون سا ہے؟ یوں تو آپ کو معلوم ہے کبھی خطوط نگاری کس نے شروع کی، یہ خطوط کی خوبیاں کیا ہیں، لیکن اس طرح کے بھی سوال آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اردو کا پہلا دستیاب خط کس کا ہے؟ تو یہ ہے 6 دسمبر 1822 کو یہ دستیاب ہوا تھا۔ کس کا ہے؟ تو حسام الملک جو ہیں بہادر، ان کا لکھا ہوا حسام الملک بہادر کا یہ خط ہے۔ سوال ہے 48 نمبر کا، خطوط غالب کو کس نے مرتب کیا؟ خطوط غالب کو کس نے مرتب کیا؟ یوں تو غالب کے خطوط کو کئی لوگوں نے مرتب کیا ہے، بٹ آپ کو یاد رہے نام، غالب کے خطوط اور غالب کی نادر تحریریں۔ تو غالب کے خطوط اور غالب کی نادر تحریریں جو ہیں وہ یاد رکھنا والی بات ہے، کس کی ہیں؟ تو یہ آپ کو نام یاد رہنا چاہیے، خلیق انجم کا۔ آگے ہے کاروان خیال، یہ ایک یاد رکھیے تصنیف، کاروان خیال۔ دوسرا ہے نقش آزاد، دونوں تصانیف ہیں۔ صنفی حیثیت ان کی کیا ہے؟ یہ خطوط کے مجموعے ہیں ابوالکلام آزاد کے۔ تو ابوالکلام آزاد کی جو ہے دونوں کیا ہیں؟ خطوط کے مجموعے ہیں۔ نام پھر یاد رکھیے، کاروان خیال اور نقش آزاد۔ اور آج کا آخری سوال ہے اعلان الحق۔ اعلان الحق جو ہے وہ 1903 میں اور 3 میں لکھی گئی آئی ہے، اور اس کے بعد میں یہ کتاب، دوسری کتاب ہے فیصل۔ تو یہ کس کی تصانیفیں ہیں؟ یہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب امید کرتا ہوں ان میں جو بھی کوشچن غلط ہوئے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ کا مشورہ میرے لیے بہت ہی اہم ہے، اور جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو بھی ضرور بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔